तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये वीडियो आपके रिवीजन पर्पज से मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। और दूसरी चीज़ जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के साथ, दोस्तों अगर आप वॉच करना चाहते हैं मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस एंड 3000 MCQs विद PDF, so what you have to do, just download Unacademy the learning application on your cell phone, and then students follow me on Unacademy the learning application. I have already prepared more than 100 plus videos and covered more than 3000 MCQs on English literature free of cost on Unacademy the learning application. So just download Unacademy the learning application and follow me there, and do not forget to join my daily free special class at 2 p.m. on the same application. And students, yeah, you can also join my paid classes. Paid classes, students, if you want notes and complete guidance, so then join my paid classes on Unacademy the learning application. My referral code AKS Rajbir. Use this referral code and you will get 10% off on your Unacademy courses. And now students, see what we have on this video. So first of all, students, with the help of one-liners, we are going to revise everything. So see, here is the very first point. There are 4 poems which contains the signature of Sinwolf. For students, Sinwolf, who is Sinwolf? So Sinwolf, students, you know, old English poet. So Sinwolf in runic characters, students. So these are the name of the 4 poems: Alien, Christ, Juliana, and Fates of the Apostle, students. So these are the 4 poems that contains the signature of Sinwolf on students its page, right? Another one point, so we have ecclesiastical history of English race. Sometime it is also known as ecclesiastical history of English people. ये दोनों नाम है students, याद रखेंगे. So this is English name, but originally the work was written in Latin language. And what was the title of the work? So the title was Historia Ecclesiastical Gentis Ansi Anglorum. So students, yes, this is the Latin title and that is the English title. So you can see, students, so please do remember, an ecclesiastical history of English people or race. This is the old English history work, students. With the help of this particular work, हमें पता चलता है बहुत सारे जो हमारे ओल्ड इंग्लिश पोएट थे, राइटिंग्स थी, सो उसके बारे में हमें पता चलता है. Now see the next one point. So we have John Gower. So students, John Gower and William Langland. So these both are contemporary of Geoffrey Chaucer. Another thing you must remember, so Langland has written Piers the Plowman, right? And John Gower, students. So John Gower has written a work, one of the important work. What is the name of this particular work? So this is Confessio Amantis. Confessio Amantis. What does it mean, students? So this is confession of a lover, right? Got it, nice, students? Yes. And where, students? So this aging lover is going to confess in the temple of Venus. Venus, so goddess of beauty. Venus, so that is goddess of beauty. Now students, see the next one point. So Delia. Students, Samuel Daniels Delia. Please, Daniel and Delia आप याद रख सकते हैं बहुत ही इजीली इसे, और इसको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है. So Samuel Daniels Delia, students, this is what? So this is a sonnet sequence. Astrophel and Stella, so that is also a sonnet sequence. And students, even we have different sonnet sequence like that is, students, by Shelley and Wit. What is the name of their sonnet sequence? So students, that is Total's Miscellany, because that was published by Richard Total. Richard Total was publisher, and that's why it was known as what, students? So as Total's Miscellany. Do remember, please. Now we have next one point. So next one is the editor of the first edition of Shakespeare's plays. Students, yeah, Shakespeare's plays, or you can say folio, students. Shakespeare's plays collection, so that is known as folio.
first folio and second folio. So I'm talking all about first folio. First folio, students. So the publisher of the first folio was Heming. Another one figure, so he was Condell. So these two were the figure. You can say, students, these two were the publisher of the Shakespearean work or Shakespearean plays. Now see, students, next one point we have Mask of Beauty, students. Mask of Beauty. Even John Milton has also written Mask. मिल्टन ने भी लिखा मास्क को, और मिल्टन ने तो इपिक भी लिखा, एंड मिल्टन ने इवन अ नॉन फिक्शनल वर्क एरोपैजिटिका ही हैज़ ऑल्सो रिटन. सो दीज आर द थिंग यू मस्ट रिमेंबर. एंड स्टूडेंट्स, यस, गोइंग टू टेल यू. सो the Mask of Beauty, the Mask of Beauty, so this is by whom? So this is by Ben Jonson, right? So then see next one point. Next one point is, this is Thomas Heywood. So Thomas Heywood, students, he is author of a work named A Woman Killed with Kindness. A Woman Killed with Kindness. दोस्तों ये जो वर्क है ना, इसे हम डोमेस्टिक ट्रेजेडी में कंसीडर करते हैं. प्लीज याद रखिएगा, डोमेस्टिक ट्रेजेडी. और एक और वर्क है स्टूडेंट्स, पिटी सी इज वोर, दैट इज ऑल्सो डोमेस्टिक ट्रेजेडी. एंड स्टूडेंट्स, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओथेलो का नाम आपने सुना ही होगा. ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर, स्टूडेंट्स. एंड अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्क, someone said that now women must be aware. Now women must be aware about their handkerchief. Right, students? So yes, this has been also said. So that is also a kind of domestic tragedy too. Now see the next one point. So we have Julius Caesar and Antony and Cleopatra. So yes, students, it has been said that William Shakespeare has depicted Roman character or Romans more than their real characters, students, right? So Julius Caesar and Antony and Cleopatra. So yes, these two are the work Roman plays by William Shakespeare. And one more thing, students, you must remember Antony and Cleopatra. So it has been imitated in John Dryden's All for Love. Please do write, students. आपके एग्जाम में 2 बार आए इसके क्वेश्चन कि जो ऑल फॉर लव है उसको कहाँ से, उसकी बेसिकली उसकी स्टोरी को कहाँ से डिराइव किया गया. सो द राइट आंसर इज एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की सेम स्टोरी को लिया है किसने? ड्राइडन ने, इन हिज heroic play, heroic tragedy, All for Love. Heroic tragedy, students, so जो epic qualities के साथ होती हैं, that is known as heroic tragedy. Next one, the Cenci is a play. Students, Cenci, this is a play by P.B. Shelley, Percy Bysshe Shelley. Do remember, please. वैसे students हम P.B. Shelley को Ode to the West Wind, और you can say students Skylark. एंड पीबी शैली को स्टूडेंट्स हम कुछ ऐसे वर्क्स के लिए जानते हैं. एक और पोएम है स्टूडेंट्स, एडनिस ऑन डेथ ऑफ जॉन कीट्स. शैली हैज आल्सो रिटन डिफेंस ऑफ इंग्लिश पोएट्री. स्टूडेंट्स, प्लीज डू रिमेंबर डिफेंस ऑफ पोएजी, डिफेंस ऑफ इंग्लिश पोएट्री, डिफेंस ऑफ पोएजी. सो दैट इज बाय Philip Sidney, and defense of English poetry, or so this is by Shelley. Please do remember. और Shelley का जो defense है ना, so 1821 के time period में लिखा गया था, but was published in the year 1840 after death, posthumously published हुआ था. टेनिसन रोट मॉड स्टूडेंट्स, अगर मॉड की बात करें सो या दिस इज अ पोम, एक थोड़ा सा लॉन्ग वाली पोएम है. बट प्लीज डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, मॉड गॉन, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कीजिएगा. सो मॉड गॉन, सी वॉज बिलवेड ऑफ W.B. Yeats, विलियम बटलर येट्स जिन्होंने गीतांजलि का प्रीफेस लिखा स्टूडेंट्स. एंड विलियम बटलर येट्स, सो सिस्टर्स पोएम लिखा था, 2 sisters पोएम, सेलिंग टू बाइजेंटियम एंड बाइजेंटियम. सो प्लीज डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, जो सेलिंग टू बाइजेंटियम है दैट इज फर्स्ट वन, एंड बाइजेंटियम सो दैट इज सेकेंड वन. ओपनिंग लाइन्स बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, सो प्लीज याद रखिएगा ओपनिंग लाइन्स को भी. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट मॉड. सो मॉड गॉन, वो जो बिलवेड थी W.B. Yeats की, सो उन्होंने शादी वैसे W.B. Yeats से नहीं किया था, उन्होंने शादी किया था मैकब्राइड से, जॉन मैकब्राइड से. एंड
स्टूडेंट्स एक पोम लिखा W.B. येट्स ने, नो सेकेंड ट्रॉय, नो सेकेंड ट्रॉय स्टूडेंट्स, राइट? सो नो सेकेंड ट्रॉय इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोएम की जो W.B. येट्स ने जहां पर अपनी बिलविड को याद किया। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पोएम हैं कि जिसमें W.B. येट्स ने अपने लव को, क्योंकि वो इनकम्प्लीट लव है, उसको बहुत ही याद किया है। एमिली ब्रॉन्टे रोट विदरिंग हाइट्स। स्टूडेंट्स जो ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, सो ब्रॉन्टे सिस्टर्स में कई बार ये बात पूछी जाती है कि सबसे ज्यादा फेमस हु वाज या अमंग दीज थ्री स्टॉमी सिस्टर्स, क्योंकि इन्हें ब्रॉन्टे सिस्टर्स को हम एक और टर्म देते हैं स्टॉमी। स्टूडेंट्स STORMY, प्लीज याद रखिएगा, STORMY, स्टॉर्मी सिस्टर्स, ओके। और ये जो स्टॉर्मी सिस्टर्स, ये जो टर्म है स्टूडेंट्स, तो इसमें से जो सबसे ज्यादा फेमस रही वो शार्लोट ब्रॉन्टे। शार्लोट ब्रॉन्टे, जैन आयर वर्क लिखा ना, बहुत ही फेमस वर्क है जैन आयर, प्लीज याद रखिएगा। हाँ, चार्ल्स फर्स्ट वाज बीहेडेड इन 1649। स्टूडेंट्स थोड़ा सा इस क्रोनोलॉजी को आप समझिएगा। 1558 स्टूडेंट्स, सो 1558 से जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड इंग्लिश थ्रोन पर आई, 1603 she died. So James VI of England, he came in England and become James I of England, right? वो स्कॉटलैंड के जेम्स 6 थे और इंग्लैंड आए, सो जेम्स फर्स्ट हो गए। 1603 to 1625 स्टूडेंट्स, या 1603, ये टाइम पीरियड, 1603 to 1625, सो ये टाइम पीरियड था कि जो जेम्स फर्स्ट थे वो इंग्लिश थ्रोन पर है। बट 25 स्टूडेंट्स ऑनवर्ड्स चार्ल्स फर्स्ट, इसे स्टूडेंट्स हम कैरोलिन पीरियड भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे प्यूरिटन एज भी कहेंगे, राइट? सो कैरोलिन टाइम पीरियड, सो वो 49 तक, 1625 से 1649 तक का टाइम पीरियड कैरोलिन टाइम पीरियड। बट जो चार्ल्स फर्स्ट था वो लैविश किंग था, चार्ल्स सेकेंड भी लैविश किंग ही था। सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स ही वाज बीहेडेड, राइट? एंड आफ्टर बीहेडिंग जो क्रॉमवेल था, राइट? क्रॉमवेल, रिचार्ड क्रॉमवेल, ओलिवर क्रॉमवेल, ये दोनों ब्रदर थे। सो स्टूडेंट सिविल वॉर की कंडीशन बनी एंड देन प्यूरिटन टाइम पीरियड, इवन कि आपको पता होना चाहिए 1642 ड्रामा भी बैन कर दिया गया था ड्यू टू प्यूरिटन्स। सो देन चार्ल्स फर्स्ट वाज बीहेडेड इन द ईयर 1649। चार्ल्स सेकेंड वो भाग गया फ्रांस को, राइट? एंड देन 1649 टू 1660 ये टाइम पीरियड कॉमनवेल्थ पीरियड, प्यूरिटन इंटरगनम के नाम से जाना जाता है, कॉमनवेल्थ और प्यूरिटन इंटरगनम, बिकॉज उस समय कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट थी इंग्लैंड में, सो दैट्स व्हाई। अनदर थिंग स्टूडेंट्स यू मस्ट रिमेंबर कि जो 1660, सो चार्ल्स सेकेंड को इंग्लिश थ्रोन में बैठाया गया, राइट? एंड वहां से फिर से रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की के साथ फिर से बिगिनिंग हुई, बट चार्ल्स सेकेंड भी लैविश किंग ही था। नाउ सी स्टूडेंट्स, यस, शैमुअल बटलर। स्टूडेंट्स देखिए, शैमुअल बटलर दो हैं, सैमुअल बटलर दो है, प्लीज याद रखिएगा। सैमुअल बटलर स्टूडेंट्स, सो ही हैज रिटन हुडीब्रास, दिस इज द वर्क 1612-80। स्टूडेंट्स ये जो मैं सैमुअल बटलर की यहां पर बात कर रहा हूं, ये इनका बर्थ हुआ था 1612 एंड 1680 डेथ हो गई थी। एंड हुडीब्रास, so this is a mock heroic narrative poem, mock heroic स्टूडेंट्स। सो mock heroic के मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे एक एब्सोल्यूम एनेक्टोफिल है, उसको भी हम mock heroic में ही पुट अप करते हैं, राइट? हाँ, that is also a biblical allegory, political allegory by John Dryden, but that is also a mock epic. Another one students, mock heroic, so that is Rape of the Lock, Dunciad by Alexander Pope। दो वर्क लिखे, Rape of the Lock and Dunciad by Alexander Pope। एलेक्जेंडर पोप को दो और एसेज के लिए याद रखिएगा प्लीज, एसे ऑन मैन एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म। बाय द वे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये पोइट्रिक फॉर्म में है, बट एसे टाइप का इनका टाइटल है। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, सो शैमुअल बटलर, मैंने आपको बताया ना शैमुअल बटलर्स दो हैं, एक जो 1612 वाले थे और ये हैं सिर्फ 1835, सो ही हैज रिटन द वे ऑफ ऑल फ्लेश, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, The Way of All Flesh, and this is semi-autobiographical work. Please do remember, semi-autobiographical work by Samuel Butler, an attack over Victorian era hypocrisy। और इसका स्टूडेंट्स जो राइटिंग टाइम पीरियड है वो देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन में, दिस इज द राइटिंग टाइम पीरियड एंड यू कैन से। और यहाँ पर पोंटिफैक्स फैमिली है, पोंटिफैक्स फैमिली की बात किया है सैमुअल बटलर ने।
Now see students, one more point. Shelley mourns the death of his fellow poet. So वो मैंने आपको बताया ही एडनिस. बट स्टूडेंट्स डू रिमेंबर प्लीज, क्योंकि देखिए जो ये पैस्टोरल एलिजीज हैं, पैस्टोरल एलिजी से मेरा मतलब समझ रहे हैं, सिंपली है, सिंपल मतलब pastoral elegies, a number of pastoral elegies has been written in English literature. Even अगर हम देखें सो बेन जॉनसन और इसके पहले सिडनी एंड ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी. एंड जॉन कीट्स ने भी अपना हाथ आजमाने की कोशिश की, सॉरी जॉन मिल्टन ने. नाउ सी स्टूडेंट्स की जो कुछ फेमस पैस्टोरल एलिजीज हैं, जैसे कि एलिजीज जो किसी की डेथ पर मॉर्न सॉन्ग होता है ना, मॉर्निंग सॉन्ग, लाइक एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जिसमें टॉमस ग्रे ने अपनी आंट और अपने उनके एक फ्रेंड थे रिचार्ड वेस्ट, उन दोनों की बात की है. रिचार्ड वेस्ट, ये दो फ्रेंड, एक तो उनकी आंट है, दूसरे उनके फ्रेंड है, सो उनकी बात की है. एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. नाउ सी स्टूडेंट्स, थायरेसिस. सो थायरेसिस दैट हैज बीन रिटन ऑन डेथ ऑफ आर्थर ह्यू क्लॉग, राइट. मैथ्यू अर्नोल्ड ने स्टूडेंट्स लिखा था थायरेसिस को, और जॉन कीट्स की डेथ पर एडनिश लिखा पीबी शैली ने, राइट. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है एडनिस में, देखिए जैसे प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो सेड की पोएट शुड बी बैन्ड फ्रॉम एन आइडियल स्टेट, राइट. सो ये जो चार्ज था ऑन द सेम वे जॉन लॉकहार्ट और विल्सन कॉकर, ये दो ऐसे इंसान थे जो बहुत ही खतरनाक थे. जॉन लॉकहार्ट सो ब्लैकवुड मैगजीन एंड विल्सन कॉकर स्टूडेंट्स. सो जो विल्सन कॉकर थे सो वो एक मैगजीन से क्वार्टरली रिव्यू नाम की मैगजीन थी, उस मैगजीन के साथ एसोसिएटेड थे, और दोनों ने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था जॉन कीट्स की राइटिंग को. इवन की लॉकहार्ट का तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था. और शैली ने डायरेक्टली कहा कि यस दीज क्रिटिक्स आर द रीजन बिहाइंड डेथ ऑफ दिस यंग पोएट. गॉट इट. चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं. सी स्टूडेंट्स, अर्थर, हाँ, टेनिशन ने भी स्टूडेंट्स कुछ एलेजाइक टोन के साथ वर्क लिखा, जैसे इन मेमोरियम, जिसको क्वीन विक्टोरिया ने भी बहुत पसंद किया, और क्वीन विक्टोरिया ने जॉर्ज एलियट, एडम बेड को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था, और इवन पेंटिंग भी बनवाई थी क्वीन विक्टोरिया ने. नाउ सी स्टूडेंट्स, अनदर थिंग. सो आर्थर कॉनन डायल का आपने नाम सुना ही होगा. और शर्लॉक होम जो कैरेक्टर है, जो एक थोड़ा सा किस टाइप का कैरेक्टर है, आप इसे किस टाइप का कहेंगे? सो आप इस कैरेक्टर को कुछ ऐसा कह सकते हैं जैसे कि थोड़ा सा जो जासूसी टाइप का कैरेक्टर होता है ना, उस टाइप का कैरेक्टर है शर्लॉक होम्स. नेक्स्ट वन, सो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के साथ कौन कौन एसोसिएटेड है स्टूडेंट्स? सो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, सो दीज आर एसोसिएटेड विद ऑक्सफोर्ड मूवमेंट. Like see students, yes you have yes Cardinal Newman and Cable, right. So these two figures students बहुत ही important figure हैं Oxford movement से जो associated हैं. Now let's have a quick look at Geoffrey Chaucer and his Canterbury Tale, another work, Legend of Good Women, and Troilus and Cressida, and students, Romance of the Rose. So these all are the work by Geoffrey Chaucer. So have a look at his work Canterbury Tale. So Canterbury Tale में students जो Geoffrey Chaucer ने बहुत ही अच्छी बात की, अब आप इसे चाहे बुरा कहें या अच्छा कहें, बट हाँ वहाँ पर इमिटेट किया. किसको इमिटेट किया मैं आपको बता दूं फाइनली कि जो इन्होंने इमिटेट किया है Geoffrey Chaucer ने. So Boccaccio के Decameron students, so that is collection of 100 tale. Decameron, collection of 100 tale, and these all tales told by whom? So students, 7 male characters are there, and 7 female characters are there, and 3 male character. क्वारंटीन टाइम चल रहा था और फ्लोरेंस में स्टूडेंट्स प्लेग आया था. सो क्वारंटीन टाइम पीरियड में इन लोगों ने टेल्स सुनाई, और बोकासियो के डेकामरन में कलेक्टेड हैं 100 टेल्स. एंड ऑन द सेम वे आपने कैंटरबरी टेल में देखा प्रोलॉग लिखा जेफरी चॉसर ने, और बहुत ही ब्यूटीफुली डिफरेंट कैरेक्टर्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया. नाउ सी अनदर थिंग सो इम्पॉर्टेंट, जॉन वाइक्लिफ. So John Wycliffe, he is known for the translation of the Bible, right? Translation of the Bible, so that is associated with whom? So associated with John Wycliffe. 14th century में स्टूडेंट्स इन्होंने बहुत ही अच्छे से बाइबल को ट्रांसलेट किया, एंड ही इज नोन एज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ बाइबल. और जो लैटिन से बाइबल इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई, सो दैट इज नोन एज वुलगेट. स्टूडेंट्स प्लीज याद रखिएगा, VULGATE, प्लीज
ये आप याद रखेंगे, गॉट इट, VULGATE, वुलगेट बाइबल। नाउ सी स्टूडेंट्स, या सो थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की चार्ल्स सेकेंड। सो चार्ल्स फर्स्ट सेकेंड का जो बिहेडिंग है वो तो बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने वैसे भी डिस्कस कर दिया है। और नाउ स्टूडेंट्स सी नेक्स्ट वन पॉइंट, सो ग्रेस अबाउंडिंग, जॉन बनियान। सो देखिए पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है ना, एंड देन पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के साथ साथ स्टूडेंट्स जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है वो 2 पार्ट में है। वन पार्ट सो जर्नी ऑफ क्रिश्चियन, अनदर वन पार्ट सो जर्नी ऑफ क्रिस्टीना, एंड जो कुछ पड़ोसी लोग हैं और कुछ उनके जो चाइल्ड हैं। ना सी स्टूडेंट्स, सो जो जॉन बनियान का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है उसे आप क्रिश्चियन वर्क कहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स जो जॉन बनियान थे वो बहुत ही मतलब प्यूरिटन थे बाय द आइडियाज, और इवन 1660 इन्हें अरेस्ट भी किया गया था ना, क्योंकि प्यूरिटन आइडियोलॉजी होने की वजह से, सो दैट्स व्हाई ही वाज अरेस्टेड। Now students, see next one thing I am going to tell you. So this is, according to me, the greatest satirist of England is Jonathan Swift. Students, ये मैंने क्यों लिखा, because कई बार ये बात कहा जाता है कि who is the greatest satirist. So Jonathan Swift की बात आती, Gulliver Travel, Battle of the Book, राइट स्टूडेंट्स, टेल ऑफ टब, ये कुछ ऐसे वर्क्स हैं कि जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंटली इन्होंने डिस्कशन किया है कई सारी चीज़ों का। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि जोनाथन स्विफ्ट की, सो बैटल ऑफ द बुक वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, एंड बैटल ऑफ द बुक टेक्स प्लेस वेयर स्टूडेंट्स, सो इन किंग्स लाइब्रेरी, जिसे हम सेंट जेम्स लाइब्रेरी बोलते हैं। देखिए कई बार ये कंफ्यूजन मिलता है, सो प्लीज आप एक बार गूगल कीजिए एंड ऑन गूगल सर्च बैटल ऑफ द बुक। सो बैटल ऑफ द बुक दैट इज बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न, राइट, एंड बी एन स्पाइडर एपिसोड इज ऑल्सो देयर। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। एक चीज और मिलेगी उसमें स्टूडेंट्स, जो उसका फ्रंट पेज है, सो वहां पर किंग्स लाइब्रेरी दिया हुआ है, राइट। सो उस चीज से हमें समझ में आता है कि किंग्स लाइब्रेरी, इवन यूजीसी भी जो मांगता है वो किंग्स लाइब्रेरी ही मानता है। सी डेविड कॉपरफील्ड, सो डेविड कॉपरफील्ड दैट इज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बाय चार्ल्स डिकेंस, एंड वन मोर वर्क स्टूडेंट्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, काफी अच्छा वर्क है। वैसे डॉम्बी एंड सन भी काफी अच्छा है, ओलिवर ट्विस्ट भी काफी अच्छा वर्क है, लिटिल नेल, सो चार्ल्स डिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। सी स्टूडेंट्स, यस, जॉन ड्राइडन कंपोज्ड एनिस मिराबलिस, अ रिमार्केबल और एस्पीशियस ईयर। स्टूडेंट्स देखिए ये जो वर्क है स्टूडेंट्स, एनिस मिराबलिस, सो द ईयर ऑफ मिराकल, इसको सिंपली जब हम ट्रांसलेट करते हैं, सो दैट इज नोन एज ईयर्स ऑफ मिराकल। सो 1666 स्टूडेंट्स, मैं राइट करता हूं 1666। सो 1666 दिस इज ईयर नोन एज द डेविल्स ईयर, बट बाय द वे इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ इंग्लैंड में, सो दैट्स व्हाई जॉन ड्राइडन ने लिखा एनिस मिराबलिस, ईयर ऑफ मिराकल। चॉसर स्टूडेंट्स, सो चॉसर एंड शेक्सपियर ट्वाइलेस एंड क्रेसिड पर लिखा, बिकॉज विलियम शेक्सपियर की बात करें तो ट्वाइलेस एंड क्रेसिड इन्होंने लिखा, एंड ऑन द सेम वे चॉसर ने भी लिखा ट्वाइलेस एंड क्रेसिड। सो दोनों ने एक ही थीम पर लिखा है, और ट्वाइलेस एंड क्रेसिड एसोसिएटेड विद ट्रोजन वॉर एंड ऑल। देन सी स्टूडेंट्स, 2 फेमस बायोग्राफर, सो वन बायोग्राफर, सो वो जेम्स बॉसवेल ने जो लिखा ना, लाइफ ऑफ जॉनसन, लाइफ ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, एंड वॉल्टर स्कॉट ने भी स्टूडेंट्स एक वर्क लिखा। वॉल्टर स्कॉट का जो वर्क है, सो दैट इज लाइफ ऑफ नेपोलियन। इंग्लिश लिटरेचर की 2 बहुत इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज हैं, याद रखिएगा। राइम रॉयल, अब राइम रॉयल के स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करूंगा। प्लीज एक चीज मैं आपको इन बिटवीन बता दूं, 2 PM डेली स्टूडेंट्स अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस आप ज्वाइन कीजिए। आपके एग्जाम तक बहुत ही बढ़िया मैंने प्रिपरेशन कराई, 3000 प्लस क्वेश्चंस एमसीक्यूज मैंने कवर किए हैं। डेली वॉच कीजिए, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं, बस अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, नथिंग एल्स, और वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिए। सी स्टूडेंट्स, राइम रॉयल, देखिए राइम और रॉयल नाम से ही काफी ज्यादा, रॉयल्स मतलब एसोसिएटेड विद रॉयलिटी। राइम रॉयल इज कॉल्ड आफ्टर द नेम ऑफ स्कॉटिश किंग जेम्स। किंग जेम्स यही वाले किंग जेम्स फर्स्ट, स्कॉटिश किंग यानी कि ये जेम्स 6 थे ना इंग्लैंड स्कॉटलैंड के, एंड ही बिकम किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, राइट। सो ही यूज राइम रॉयल। और प्लीज राइम रॉयल में कितनी लाइन्स होती हैं इस चीज के एक ट्रिक से याद रखिएगा, ये तो कम से कम मैं 20 बार बता चुका हूँ। ROS 7, 8 और 9 के साथ 7, सो राइम रॉयल, O से ओटोआ राइमा, S से स्पेंसरियन स्टेंजा। प्लीज नोट कर लीजिएगा, राइम रॉयल, ओटोआ राइमा,
एंड स्पेंसरियन स्टेंजा। स्पेंसरियन स्टेंजा की 9th लाइन एलेक्जेंड्राइन बोलते हैं उसे। अर्ल ऑफ सरे, so students अर्ल ऑफ शरे एंड थॉमस विट। सो अर्ल ऑफ सरे एंड थॉमस विट, सो मैं अगर बता दूं सो सोनेट जो फॉर्म है सो पैट्रार्क से इन्होंने अडॉप्ट किया था। पैट्रार्क ही वाज इटालियन सोनेट, राइट। और पैट्रार्क ने अपनी बिलवेड लॉरा के लिए लिखा था, LAURA, प्लीज याद रखिएगा। देन शरे ने एंड विट दोनों ने सोनेट को अडॉप्ट किया, एंड सोनेट को अडॉप्ट करने के बाद इनका जो कलेक्शन है वो टोटल्स मिसलेनी में पब्लिश हुआ था। टोटल्स मिसलेनी, सो रिचार्ड टोटल ने इसे पब्लिश किया था, राइट। दैट इज नोन एज कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट टोटल्स मिसलेनी। बेन जॉनसन की स्टूडेंट्स अगर बात करें, देखिए कई बार ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल, देखिए प्लीज याद रखिएगा, बेन जॉनसन अनऑफिशियल, फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट की ऑफिशियल, सो ड्राइडन को याद रखिएगा, ड्राइडन ऑफिशियल पोएट लॉरिएट। एमिली ब्रॉन्टे, सो मैंने आपको बताया एमिली ब्रॉन्टे, शर्लॉट ब्रॉन्टे एंड यस एन एमिली एंड शर्लॉट। सो जो एमिली ब्रॉन्टे हैं सो इनमें से ग्रेटेस्ट सिस्टर कंसीडर की जाती है। स्टॉमी सिस्टर्स एंड ऑल में भी हम इन्हें एक नाम और देते हैं। जोफ्री चॉसर, आपने जानते हैं कि इस जोफ्री चॉसर एंड स्टूडेंट्स ही वाज द फर्स्ट मैन जिसने हेरोइक कपलेट को यूज किया था। हेरोइक कपलेट, सो दैट बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग नियो क्लासिकल टाइम पीरियड। नियो क्लासिकल, सो ड्राइडन, पोप, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, सब लोगों ने हीरोइक कपलेट में लिखा। इवन की ड्राइडन बात भी करते थे हीरोइक कपलेट में, एक बार मारे गए थे, इनके पापा ने इन्हें बहुत मारा कि तुम हमेशा हमसे भी हीरोइक कपलेट पर ही बात करते हो। सी स्टूडेंट्स, एक प्ले लिखा है वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ बेसिकली ही इज अ पोएट, नेचर पोएट, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, राइट, पोएट ऑफ नेचर। द वर्ल्ड ऑफ फ्लोरा एंड फना हैज बीन एक्सप्लोर्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। प्रिल्यूड एंड डेफोडिल्स एंड अदर पोएम लाइक माइकल and लीच गेदरर एंड ऑल। सो ये सारी बहुत सारी पोएम्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, और लूसी पोएम्स भी हैं। बट स्टूडेंट्स एक ड्रामा भी इन्होंने लिखा। बॉर्डर इज द नेम ऑफ द प्ले रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। लिरिकल बैलेड, सो लिरिकल बैलेड की जब हम बात करें 1798, राइट, लिरिकल बैलेड। और कलेक्शन था 2 लोगों का, शैमुअल टेलर कॉलेज, विलियम वर्ड्सवर्थ। 19 पोएम थी, 4 पोएम्स जो 23 पोएम्स थी, 19 कंट्रीब्यूटेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाय शैमुअल टेलर कॉलेज। फर्स्ट पोएम सो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर एंड लास्ट पोएम टिंटन एबी, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को खुद कहा कि आई एम द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। And see students, next one point, so this is important one. It began as students, Keats's Eve of St. Agnes, so that is a version of tale from Boccaccio. जो Eve of St. Agnes है, Eve of St. Agnes, so यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ही ब्यूटीफुली जो जॉन कीट्स ने है डिफरेंट मैटर्स पर बात किया है। और ये जो इसका टाइटल स्टोरी है जो बेसिकली यू ऑफ सेंट एग्नेस की, वो डेकामरन से ली गई स्टूडेंट्स। बोकासियो का डेकामरन वर्क है ना। सो स्टूडेंट्स यस, यहीं से बोकासियो के वर्क से स्टूडेंट्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस था, इसकी जो थीम है, बेसिक थीम है, राइट। स्टूडेंट्स देखिए जो मैंने अभी बताया, शैली हैज रिटन डिफेंस ऑफ इंग्लिश पोइट्री। और ये जो डिफेंस लिखा था सो अगेंस्ट था किसके, सो लव पिकॉक, टॉमस लव पिकॉक। टॉमस लव पिकॉक ने लिखा था 4 एजेस ऑफ पोइट्री, जहां पर इन्होंने आयरन एंड गोल्डन एज, आयरन एज एंड देन सिल्वर एंड देन स्टूडेंट्स ब्रॉन्ज एज की बात किया था। सो उसी के अगेंस्ट रिप्लाई किया था। सिडनी ने जो रिप्लाई किया था वो स्टीफन गोशोन वाली बात थी। देन सी स्कॉटिश चॉसरियन, सो स्टूडेंट्स विलियम डनबार और गैवन पोएट स्टूडेंट्स, तो जिन्हें हम कंसीडर करते हैं स्कॉटिश पोएट्स। एंड 52 पोएट्स, सो लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, सो जहां पर मेटाफिजिकल टर्म कॉइन किया सैमुअल जॉनसन ने। एंड 52 पोएट्स है, पहला पोएट है कावली, अब्राहम कावली, एंड द लास्ट वन इज पिट, क्रिस्टोफर पिट को याद रखिएगा प्लीज, लास्ट वन। सो 52 पोएट्स आर देयर। फेयरी क्वीन स्टूडेंट्स, ओरिजिनली जो स्पेंसर ने प्लान किया था वो 24 बुक्स का, और 12 बुक्स का रफली इन्होंने प्लान किया, बट 6 बुक्स कंप्लीटेड। और कहते हैं कुछ जो बुक्स थी सो आयरिस मूवमेंट के टाइम पीरियड में उन्हें बर्न कर दिया गया था। एरोपैजिटिका, सो स्टूडेंट्स एरोपैजिटिका जो मिल्टन का वर्क है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है, राइट। एंड देन स्टूडेंट्स सैक्शन केम टू इंग्लैंड फ्रॉम
लॉब कंट्री, साउथ ऑफ डेनमार्क एंड ईस्ट ऑफ होलैंड एंड मॉडर्न हॉलस्टेन। सो ये जो सैक्सन्स थे, क्योंकि एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, मिडीवल पीरियड, एज ऑफ चॉसर, रेनेशा, सो इस तरह से हम पीरियड्स को पढ़ते हैं। सो सैक्सन पीरियड ओल्ड इंग्लिश पीरियड में कंसीडर करते हैं। 1611 प्लीज आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 3 टाइम से भी ज्यादा पूछा गया है स्टूडेंट्स। ये अथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल। सो अथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल जिसे किंग जेम्स बाइबल बोलते हैं, 1611 राइट, 1611 में आया था। पैराडाइज लॉस्ट, सो पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, बेसिकली 10 बुक्स में लिखा गया था स्टूडेंट 1667, बट 1673 सो 1673 में इसे 12 बुक्स में कन्वर्ट किया गया था। 7th और 9th जो पार्ट है, प्लीज याद रखिएगा 7 और 9, इन दोनों पार्ट्स को 2-2 बुक्स में डिवाइड कर दिया गया था। सो देन इट बिकम इन 12 बुक्स बेसिकली। फॉल ऑफ मैन, दैट इज द थीम, एंड बेसिकली ओपनिंग लाइन रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। सो काफी अच्छा वर्क है स्टूडेंट्स। एंड एब्सोलेम एंड एक्टोफिल्स मैंने आपको बताया कि एक बिब्लिकल एलेगरी है, पॉलिटिकल एलेगरी है, एंड जॉन ड्राइडन इज ट्राइंग टू जस्टिफाई द ऑनर्स, यू कैन से राइटशिप ऑफ और किंगशिप ऑफ जेम्स सेकेंड, जो ब्रदर था चार्ल्स सेकेंड का, राइट। एंड देन सी यस पोप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म। सो स्टूडेंट्स ये जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म, टाइटल एसे ऑन क्रिटिसिज्म है, बट ये वर्ड्स फॉर्म में लिखा गया है और काफी अच्छे से क्रिटिसिज्म में कौन कौन सी क्रिटिक में क्वालिटी होनी चाहिए उन सारी बातों को डिस्कस किया है। टॉम जोन्स की अगर बात करूं, सो हेनरी फील्डिंग का वर्क है स्टूडेंट्स, टॉम जोन्स। और टॉम जोन्स जो वर्क है स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ पिकरिस्क नॉवल, प्लीज याद रखिएगा पिकरिस्क नॉवल। पिकरिस्क नॉवल ऐसा होता है जो वंडरिंग रॉक के बारे में लिखा जाता है, लाइक जैसे कि किपलिंग का किम है, सो दैट इज मैरी एंड इवॉन। सो जॉर्ज इलियट इनका पेन नेम है, ये याद रखेंगे। और स्टीफन गोशोन स्कूल ऑफ एब्यूज डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी, एंड स्कूल ऑफ एब्यूज में 4 चार्जेस पोएट्री पे पुटअप किए थे स्टीफन गोशोन ने, एंड देन सिडनी इन हिज अपॉलजी फॉर पोएट्री चारों चार्जेस को बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने रिप्लाई भी दिया था। सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि प्लीज 2 PM नेक्स्ट डे आप मुझसे मिलिएगा 2 PM बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, लाइव प्रैक्टिस सेशन और अनअकैडमी इंटरैक्टिव क्लासेस इसलिए देता है क्योंकि रियल टाइम आप एजुकेटर से चैट कर पाएंगे, मतलब अपने टीचर से आप बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रियली बहुत ही ऑसम क्लासेस होती है, पोल रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ यू आर गोइंग टू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी और गोइंग टू ज्वाइन माई paid classes on Unacademy, so do not forget to use my referral code AKS Rajveer. Thank you so much. Okay, bye. Good night.